People is having four profile: personal, social, spiritual, professional. Every level calls for a discipline, dedication, commitment, and 100%. Actually, we want to see unseen part, is unfiltered part हम देखना चाहते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि if you are fit, आपका personality भी change होगा. The way you talk to people, the way you deal with people, everything changes. I say Jay Sharma, it's not simple. If your purpose is clear, then everything. The next full marathon I did in 4 hours 54 minutes, and the latest one I did in 4 hours 44 minutes. और ये ultra was something which is very very difficult, a completely different experience. स्टार्ट करेंगे सर. स्टार्ट है वन प्रोफाइल वन शेट. दिस इज आइडिया ऑफ नकुल सर. तो मैं बोलूँगा कि नकुल सर ही एक्सप्लेन करें. एक्सप्लेन डिम आप. Basically, sir, we are thinking on that कि people is having four profile, like personal, social, spiritual, professional. So why not one profile? Every time we have to face four faces. कि मुझे personally कैसे रहना है. I have to see my different picture in professional life. Spiritually is so connected with us. And अब social भी एक है. So nowadays social profile is booming like anything. So we are thinking, why not one profile once year? So that is the total agenda of this program. Then let's see. तो फर्स्ट पार्ट इज लाइक यस हाउ टू मेंटेन वन प्रोफाइल वन शॉट, क्योंकि सर ने लॉन्च किया. वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट दिस. अभी वी आर मीटिंग विद डिफरेंट पर्सनालिटीज और उनका पर्सपेक्टिव टू हैव दिस फोर, टू बैलेंस दिस फोर प्रोफाइल्स इन अ सिंगल प्रोफाइल. सो आपका इसमें क्या ओपिनियन आएगा सर? हाउ टू मैच? तो जनरली इफ यू लुक एट इट, लाइफ इज टू क्रिएट अ बैलेंस, और वो बैलेंस हमेशा आदमी अपना ही क्रिएट कर लेते हैं. सो वॉट एवर प्रोफाइल यू से, वेर एवर सिचुएशन, सो दैट इज वाई सिचुएशनल लीडरशिप जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस सिचुएशन में आप किस तरीके का अपनी प्रोफाइल दिखाते हो या अपना व्यक्तित्व दिखाते हो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ डू यू बैलेंस द अदर्स विद दैट. सो इफ so like it's the day, if you look at a day, it's split into all these activities, and then you, how do you cover all these activities to create a good mix of things in your life. So something as social, so how do you manage family time. Something as professional, where you are anyways at office 12 13 14 hours, you do that. Something as social, which you keep doing say early morning, and beyond which also like in terms of spiritual activities, you do early morning, you get into your prayer, meditation, whatever you do, and then मेरे हिसाब से whatever pleases you, whatever gets your best, उसको मैं एक meditation मानता हूँ. Like if running helps me to give my best during the day, keep my energy at the best, तो उसको एक meditation मानता हूँ. So ऐसा कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि this is meditation, this is social, this is professional, and this would be whatever personal. So मैं तो एक मिक्स क्रिएट करने में बिलीव करता हूँ, एंड आई ट्राई एंड डू दैट एवरीवेयर इन दिस every space that I am, to see that how I create some fun at every level. So, but every level calls for a discipline, dedication, commitment, and 100%. See, कैसा है लाइफ में हमेशा पर्पस होना बहुत ज़रूरी है. सो अगर पर्पस लाइफ में है, देन थिंग्स ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस. फिर आपका इंटरेस्ट नर्चर हो जाता है. देन ऑल योर जो भी आपके हाव भाव है, लाइफ स्टाइल स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द पर्पस. सो प्रॉब्लम है आजकल कि पीपल कीप शिफ्टिंग देयर पर्पस क्वाइट फ्रीक्वेंटली. इफ यू हैव अ वेरी फर्म पर्पस, देन यू स्टार्ट वर्किंग इस पर्पस को पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए. और जैसे कहते हैं पूरी कायनात जुड़ जाती है तब उस पर्पस को मिलाने. सो वंस यू नो आई हैव टू रन एन अल्ट्रा, देन आई स्टार्ट थिंकिंग अल्ट्रा भागने के लिए मुझे क्या क्या मैंने नहीं किया वो करना पड़ेगा, एंड व्हाट ऑल आई नीड टू कंटिन्यू डूइंग. सो इट चेंजेस द एंटायर लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ मेरे खाने के हैबिट्स, राइट, मेरे प्रैक्टिस के हैबिट्स. एज यू राइटली सेड कि if I have to do an ultra 50 kilometers, my practice run should be a little longer, should be at inclinations, at elevations. और ये अगर आपने सुना होगा, it starts at 1 o'clock. So you never run ऐसे actually at 1 o'clock and running up to 4-5 hours till 4-5 o'clock. So that means you should have some bit of आपकी body कैसे react करती है when you run 1 o'clock is also important. So that's why some practice runs were planned like that, कि we start at 1 o'clock and then see how we get to do it. Eating habits definitely take a shape, because then you need to be agile, you need to be on your feet for a little longer time. You can't have too much of weight on yourself. फिर बाद में
at the end everything will succeed if you are committed to it and you are disciplined to it. मतलब आपने एक दिन किया, 2 दिन आराम किया, then nothing will work. So इसमें whatever is your plan, you to execute to the core. And मतलब अगर if I have to take some credit to whatever I do is only because of I'm very very focused, very consistent. I would never miss. अगर हमने प्लान किया कि हफ्ते में 4 बार हमको ये एक्टिविटी करनी है, तो I'll never ever miss that. Come what may. जिसके लिए if I have to start little early, I would do that, start little early. If there's some priorities, I'll try to accommodate those priorities within that. But I will do it. Like in these 1.5 months, like couple of times I had to leave for Pune. And leaving for Pune is at 6 o'clock. And if I have to do about 15-16 kilometers that day, that means I have to start at about 3:30 and still manage to start at 6 o'clock. So which is what I've done because I didn't want to forego my practice for that day because then it becomes a backlog. So if life also is same, it's all about this is Shivanika mindset. So mind gives direction to everything in the body. The body will follow what the mind says. And if your mind is saying you can do it, definitely body will align itself to make it happy. So very very simple things. जैसे आपने कहा keep it simple, very simple. You need to practice hard. There are no shortcuts to success. मतलब you have to go through the hard way. So आपको practice करना है, practice करना है, practice करना है. आपको आपके लाइफस्टाइल्स में थोड़ी बदलाव लानी पड़ेगी, लाना है because then only you'll get there. So वो बदलाव को लानी है. You have to be mindful about it. Okay? And then whatever you do, there is a sense of commitment कि हमको करना है. And that brings you to the table saying कि नहीं, हमको जो भी हमने शेड्यूल डिसाइड किया उसको एग्जीक्यूट करना. सो आई नेवर एवर मिस्ड वॉट एवर आई थॉट. अगर वो लग रहा है कि जैसे मैंने कहा 2-3 बार मुझे पुणे जाना चाहिए, 6 बजे निकलना पड़ रहा है मुझे, आइडियली आई वुड हैव डन बिटवीन 4 and 6:30, but then I had to start 2:30 onwards to finish my run and then I could take a shower and then leave by 6. So that's the way it is. And if your purpose is clear, then everything you get along with that. फिर उसके लिए अगर आपको थोड़ा जल्दी सोना है, you sleep early, you start working around all that. So I'm a firm believer of whatever is there. अगर चाह है and we are clear, तो फिर आपको पूरी कायनात जुड़ जाएगी आपको में आपके. And once again, sir, we want to hear that your status slogan. हम वो status slogan यहाँ कितनी बार repeat करते हैं. ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी और. मेरी अपनी मंजिली, मेरे अपनी दौड़. तो I don't believe in competing. मेरा एक सिंपल सा मंत्र है लाइफ में, सिंपल मंत्र है. आई वांट टू बी द बेस्ट इन व्हाटएवर आई डू. ठीक है. सो दैट मीन्स आई नीड टू डिलीवर टू द बेस्ट. सो आई हैव टू वर्क अराउंड दैट. आई नीड टू वर्क, आई नीड टू प्लान, आई नीड टू प्रिपेयर, आई नीड टू डू एवरीथिंग टू बी दैट आई एम द बेस्ट. अदरवाइज फॉर लीडरशिप, जैसे एज अ लीडर यू आर वॉच्ड एवरी टाइम. पीपल वॉच यू एवरी टाइम. आपको पता नहीं होता है कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बट यू आर वॉच साइलेंटली बाय एवरीवन. ठीक है. मतलब सो उस इसमें you can't let your shoulders go down. You can't relax. You need to be up and then because somebody is watching you and he may feel my leader is down. So that is why in leadership you're what? So you need to be always up and right, up and running. So and then मतलब there's infinite competition in the market. So first let's create benchmark for ourselves. ये जो benchmarks को हम ही बनाएंगे फिर हमको beat करना होगा. And be better day by day. मतलब कल से मुझे आज में बेहतर होना चाहिए. आज से मुझे कल बेटर होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई फॉलो. सो इफ व्हाटएवर आई एम टुडे, टुमारो माय लेवल ऑफ स्किल्स, माय लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, माय रनिंग, व्हाटएवर हैज टू बी बेटर देन व्हाट इट वाज यस्टरडे. यू कुड हैव सीन व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दिस, आई वाज रनिंग एट अ पेस ऑफ अबाउट 6.3 मिनट में 1 किलोमीटर. अभी नेचुरली आई गो बट 5.2 5.3 मिनट में 1 किलोमीटर. वेरी नेचुरली. आई मतलब आई डोंट फील इट ऑल्सो कि मैं, और तब अगर मैं करता इसको तो मुझे it would have taken my heartbeats on a little higher side and all that. But abhi wo naturally different because of practice. Because of practice. जैसे अर्लियर आपने बोला प्रैक्टिस 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 एंड बिलीव इन योरसेल्फ और कंसिस्टेंसी एंड दैट यू एनालाइज वन. हमने कुछ एनालाइज किया मी वर्सेस मी. तो जैसे और एक ये ऐसा है कि where if you are committed, there is always a way. So your commitment is important. रास्ते अपने आप निकलेंगे. People will come forward, will help you. क्या होगा कि once you are into that, you will get those type of people. You will meet those type of people.
और आपको नॉलेज आना शुरू हो जाएगा, इनफ्लोज. सो दैट इज योर पर्पस एट लार्ज, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. तो रोड्स अपने आप निकले. एग्जैक्टली एक एक्सपीरियंस मेरा था सर. तो दिस टाइम जब हम विजिलर कॉन्फ्रेंस में मिले तो आई अप्रोच दो कि सर पलनानी में चल रहे. तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट. बट जब हम लोग दौड़ के आने 5 किलोमीटर्स सी, इट वॉज लाइक नॉर्मल जॉगी फॉर यू. तो आई फील लिटिल बिट टायर्ड. तो जब वापस आने के बाद आई फेल्ट इट. मैंने उसको सोचा था मैं तो व्हाट वाज इट. तो इट्स व्हाट इज इट. इट्स आपके लिए क्या है. इट इज़ मी वर्सेस मी. मेरे लिए उस दिन हो गया इट्स यू वर्सेस मी. कहीं ना कहीं मैंने ये सोच लिया था कि हाँ आई कैन रन. थोड़ा प्रैक्टिस मैंने भी किया था. सो ठीक है, वो नहीं हुआ. एग्जैक्टली तुम जो बोल रहे हो ना, ये 2 दिन पहले मुझे क्या बोला इसने, अरे ऑफन हम मैं तो जिम मैन, अब हार्डी सर आएंगे, कहाँ दौड़ना पड़ेगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. तो ये प्रैक्टिस बिफोर यू ज्वाइन ना, ये 2 दिन प्रैक्टिस की है सर कार्डियो. तो अभी मैं उनके साथ तो सी द पीपल इज. नहीं, हमने वैसे दौड़ लगाई भी नहीं. हमने हैड अ प्लान. रिलैक्स कराने जा रहा है. 500 मीटर हम दौड़े, 500 मीटर हम चले जी. बट यस, सी अगेन, मेरा तो प्रैक्टिस है, सो इसलिए मैं कर पाते हैं. बट अनलेस इफ देयर इज नो प्रैक्टिस, इट वुड ओनली लीड टू एन इंजरी. सो वो भी नहीं करना चाहिए. सो जोश और होश का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें. मतलब जोश में आके काम नहीं, बट होश को भी साथ में रखना चाहिए. एंड देयर इज नो वे, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो यू शुड इवन अटेम्प्ट. सो प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी. सो फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स आई यूज्ड टू ऑलवेज वॉक. लाइक मेरा अर्ली गेटिंग अप हैबिट्स तो हमेशा से था. आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट अप टिल अर्ली 4:30. सो तब मैं चलता था. आई यूज्ड टू वॉक टू, लाइक आई यूज्ड टू वॉक ब्रिस्क वॉक, नॉट जनरली वॉक, बट अ लिटिल ब्रिस्क वॉक. मतलब about 8.5 मिली किलोमीटर है ना. सो आई यूज्ड टू वॉक अबाउट 4-5 किलोमीटर्स. और मेरा तो ये मानना था तब कि ये अगर मैराथन भागना है तो अपने पैसे खर्च करो. हाँ, अपने पैसे खर्च करके खुद दौड़ो, खुद पसीना बहाओ. ये सब किसने सिखाया है? व्हाई यू डू ऑल दिस थिंग? अपने करते अपनी मौज में रहो. बट व्हाट इट ब्रिंग्स इज, अगर आप ऐसे उस कम्युनिटी में जाते हो, व्हाट इट ब्रिंग्स इट्स कॉम्पिटिटिवनेस. सो यू गेट इनटू अ कम्युनिटी विच इज सीरियसली डूइंग दिस एक्टिविटी, और आप उस ग्रुप में एंटर कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव बन जाके. मतलब यू गेट द सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस कि दिस इज हाउ इट इज डन सीरियसली, दिस इज हाउ इट हैपन सीरियसली. तो एक सीरियस में कर देता. सो वाइल आई वाज वॉकिंग फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसी इच्छा थी कि दौड़ना चाहिए. एंड आई सी पीपल रनिंग. कैसे दौड़ते हैं लोग, आई डोंट नो हाउ दे रन ऑल्सो. सो कुछ दिवाली की छुट्टियां थी, शाम को आई वेंट विद माय वाइफ टू अ गार्डन. जिस गार्डन में मैं चलता था हमेशा में, विच इज अबाउट 700 मीटर्स. तो मैंने सोचा एक स्लो दौड़ के देखते. वो बात है कि सब दौड़ते हैं, मैं ही नहीं दौड़ पाता. ऐसा तो नहीं है, मतलब मेरे पे कुछ अलग है, उनमें कुछ अलग है. सो मैंने स्लोली जॉग करना शुरू किया वो गार्डन पर 700 मीटर्स. मैं एक राउंड कर पाया. ऐसे नहीं तो अभी तक आई एम इन गुड शेप, कुछ भी इशू नहीं है. मैंने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, एंड आई वाज कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं था. ऐसा मैं भी दौड़ सकता आके बैठे. देन आई वेंट दैट इवनिंग. तो सोचिए फ्लूक पे तो नहीं हो गया कि जनरली मैं मॉर्निंग में करता हूँ, ये शाम को हो गया, ऐसा कुछ पता नहीं. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई अगेन वेंट एंड आई डिड द सेम एक्टिविटी 5 बार, धीरे से नहीं, और वो हो गया. सो दैट वाज द बिगिनिंग कि मैं भी दौड़ सकता हूँ. सो इट शुड हैव बीन अबाउट 3.54 किलोमीटर्स. तो मैं भी कर सकता हूँ. फिर देयर आई स्टार्टेड रनिंग लिटिल बिट. फिर हमारे एक दोस्त मिल गया, उसने कहा कि एक मैराथन आ रहा है. मैराथन इज ओनली हाफ एंड फुल. ये हमारा तो भाई साहब बोले मैराथन आ रहा है, तो मैंने पिक्चर डालते हैं. तो मैंने, उसने डाला, मैंने डाला, हमने एक दूसरे से बात नहीं किया. उसने डाला 10 किलोमीटर, मैंने डाला 21 किलोमीटर. फिर हम पड़ गए. वो फिर बोले बुरे फंसे, तो 7-8 के ऊपर कभी गए नहीं हम. तो मैंने फ़ोन किया वो ऑर्गेनाइजर्स को. ऐसे नहीं नहीं, मेरा दोस्त तो 10 में, मुझे भी 10 में कह दो आप. तो बोले पैसे वैसे नहीं बोलेंगे रिटर्न, वो जो भी आपने जा दिया. ठीक है, वो 10 हो. सो तभी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, वो कम्युनिटी भी नहीं थी. सो वी रैन नॉर्मली, जो हमारे नॉर्मल शॉर्ट्स है, जो मेरे पास स्केचेस के शू थे, विच वॉकिंग शू, उसमें हम दौड़ लगाए. तो किसी को पता रहता एक दूसरे के बारे में कैसा दौड़ेंगे. सो वी ऑल रन दैट 10 किलोमीटर, जिसमें मैंने आई डिड अबाउट 1 hour 7 minutes में आई डिड 10 किलोमीटर, बट नॉन स्टॉप किया मैंने. इट वाज द फर्स्ट मैराथन. इट वॉज माई फर्स्ट रन, नॉट अ मैराथन. 10 किलोमीटर इज नॉट अ मैराथन, इट वॉज माई फर्स्ट रन. और ये आपके रनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने के कितने दिन बाद से सर? इज अबाउट 2 months 3 months में हो गया ये.
सो और जो प्रैक्टिस भी किया था वो 7 किलोमीटर तक ही किया था प्रैक्टिस, 7-8 किलोमीटर, उसको बियॉन्ड हम गए नहीं थे, 10 करना था। बट जनरली ऐसा लोगों का मानना है कि आप 7-8 कर लो, 10 हो ही है। सो वो हमने 1 घंटा 7 मिनट में कंप्लीट कर दिया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नॉन स्टॉप दौड़ सकते। फिर देन वहाँ से शुरू हुआ कि सीरियसली दौड़ना चाहिए हमको। वो था अगस्त में, एंड देन नवंबर में आते हैं नेवी का रन मुंबई। सो वो भी 10 किलोमीटर डाल दिया और चेक कर दिया। सो दैट आई डिड इन 1 आवर 3 मिनट्स। और अभी ये दौड़ का ऐसा है कि मतलब आपने एक बार ये अचीव कर लिया तो दैट्स नॉट द एंड, मतलब वो आपके आपके रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। इफ यू स्टॉप रनिंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, यू अगेन गो बैक टू जीरो। सो दैट्स व्हाई आई से प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट लीव इट। अगर मैंने आज 50 किलोमीटर भाग लिया तो मेरा हो गया मेरा, अगर देन मैं 10 दिन आराम करूँ और 11वें दिन जाऊँ तो मैं फिर 5 किलोमीटर भी नहीं मार पाऊँ। So it has to be a regular practice and it has to be injury free, because any injury can put you off for 2-3 months and then you go again back to zero. फिर जीरो से आपको पूरा सब शुरू करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप अपने आप को इंजर्ड नहीं करोगे पूरी जर्नी में। सो वो 10 हो गया, विच वॉज इन नवंबर, एंड दिस वॉज 2019। अब आया 2020, जब मैंने फर्स्ट टाटा मैराथन डाला 21 किलोमीटर्स, विच वॉज इन जनवरी, अबाउट 9-10 जैन को था। एंड मैंने पुलिस रन नेक्स्ट डाल दिया फरवरी, which was 21 days later, 21 kilometers. So my first टाटा हाफ मैराथन, और पता नहीं था क्या कैसे होगा, 21 10 से पूरा डबल जंप ले रहे हैं। सो लॉट ऑफ गाइडेंस, एनीबडी एंड एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग गाइडेंस, ये करो वो करो, ये खाओ वो पियो। सो वेंट फॉर इट एंड देन आई डिड इन 2 आवर 24 मिनट्स। 21 की 21 बिलियन किया, 1 2 आवर्स 24 मिनट्स। उसके एक 15-16 दिन के बाद was this police marathon which I did in 2 hour 14 minutes. Okay. And then came COVID, which happened in February, March, so फिर बंद हो गया, तो हम घर में ही दौड़ लगा देते। एंड देन एक्चुअली जब वो लॉकडाउन खुला तो दौड़ने नीचे गए तो दौड़ नहीं आ रहा था, मतलब यू आर फीलिंग टायर्ड, क्योंकि घर का दौड़ना और नीचे दौड़ना कंप्लीटली अलग था। सो फीलिंग टायर्ड, फिर शुरू किया जीरो से वापस। एंड देन देयर केम दी Vasai Virar marathon, and which I did in 2 hour about 14 minutes, which was my lowest. And the next Vasai Virar I did in less than 2 hours, which is people call it good, 1 hour 57 minutes. Next I did is the Atal Setu Ultra, which I did in 1 hour 57, just saving 3-4 seconds. उसमें मैंने फिर अपना फुल मैराथन भी कर लिया, without any training, without any coaching, but on my own, learning from social media. And I did in about 5 hours 31 minutes. Then I went into some bit of coaching, which I did for a couple of months. The next full marathon I did in 4 hours 54 minutes, and the latest one I did in 4 hours 44 minutes. और ये ultra was something which is very very difficult, a complete different experience, जिसके लिए again you need to prepare yourself, you need to have a proper mindset. पूरे जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है वो अलग है। एक तो दौड़ ऑलरेडी 8 किलोमीटर ज़्यादा है, 42 ऐसे लगता है कि जल्द जीत लिया, उसमें और 8 किलोमीटर करने हैं। सो उस सब चक्कर में लॉट ऑफ माइंड गेम, यू नीड टू ऑल्सो हैव द राइट न्यूट्रिशन टू योर बॉडी एंड द प्रैक्टिकम। सो प्रैक्टिस हमने काफ़ी की, जितने ब्रिजेस है मुंबई में, हर एक ब्रिज पे हम लगातार ऊपर नीचे दौड़ते, टू क्रिएट एन एलिवेशन, मतलब यू टू क्रिएट एन स्ट्रेंथ इन योर थाइस एंड योर कोर। सो बहुत सारे ब्रिजेस हमने ऊपर नीचे किए सेफली, बिकॉज रात को वैसे ही मुंबई में गाड़ी काफ़ी तेज चला दे रहे हो, टू बी वेरी माइंडफुल। वो किए। देन देयर आर लॉट ऑफ एलिवेशन है, कनेरी में एक एलिवेशन है वो किया है। देन बाजू में अभिनव नगर है, उस पर एलिवेशन पे काफ़ी दौड़े, टू गेट अ हैंग ऑफ एलिवेशन, बिकॉज इस रूट पे इट गोज अप टू 800 मीटर्स, इट इज जस्ट क्लोज टू 1 किलोमीटर। सो उसमें यू नीड टू बी टफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैम्स आ जाते हैं, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिस, इफ यू आर नॉट वेल, क्रैम्स आ जाते हैं। सो वो क्रैम्स अवॉइड करना था, एंड इट हैपेंड। So what makes you this much motivated? सब क्या है जो इतना मोटिवेटेड करके रखता है? So couple of things, जैसे मैंने कहा, I always believe that you should be best in whatever you do. So मतलब मेरा ऐसा मानना नहीं कि कभी सेकंड आना चाहिए। I always believe you to be the best, नंबर 1 रहना चाहिए हर एक चीज़। जो भी करो शिद्दत से करो, नंबर 1 होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी, जोर, ताकत उतनी लगनी चाहिए। दूसरा है कि I personally feel very fit, very energetic when I do all my activities, और it keeps me up and running, एक अलग सी एनर्जी रहती है अंदर टू कंडक्ट योर एक्टिविटीज, बिकॉज इवन इफ आई
I try to manage about 6 hours of sleep and early waking and then going for these activities. It keeps me energetic throughout the day. Anytime. मतलब अगर if I go home at about 8:30 and मुझे बोले आपको बाहर जाना है अभी, I'm still okay. I never feel short of energy कि मुझे अभी थक गया हूँ, let's put it tomorrow. And generally I don't believe in doing anything tomorrow. I would want to do it today, now, अभी. So these gives me a kick, अलग kick देते हैं मुझे कि and then मुझे मेरा ऐसा मानना है कि if you're fit, आपका personality भी change होगा. The way you talk to people, the way you deal with people, everything changes. If you have a flat belly, it gives you a good feel. Inner के लिए feel एक अच्छा रहता है and then you also look younger also. You don't look your age. Whereas if you see a lot of people of my age, my batch personnel, because they've not paid attention to this, they look elder to their age. मतलब कोई 50 का होगा तो 55 का लगेगा, 55 का है तो 60 का लगेगा. So वैसा हो जाता है. And then instead of you doing it yourself, आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी और डॉक्टर ही बोलेगा आपको ये करना है. So other than being reactive, why not be proactive? And then इसे खुद को ही अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ गई है. But it gives me a good मुझे खुद I look मेरा पर्सनली मुझे खुद अच्छा लगता है. तो जो हमारा मी वर्सेस मी का है, दैट इज इन लाइन. व्हाट अबाउट आपका फूड के बारे में क्या ओपिनियन है सर? तो जनरली मैं ऐसा पे परहेज नहीं ज़्यादा. आई ट्राई टू क्रिएट अ गुड बैलेंस बिटवीन रोटी राइस. आई डोंट जनरली प्रिफर ईटिंग आउटसाइड and the junk food also. Now I was eating the vada paos and all, and I love samosa and all that stuff. But when I got seriously into this, मतलब अगर मैं दौड़ रहा हूँ फिर एक समोसा खा रहा हूँ, so it's all became a null, zero हो रही. So consciously even मतलब इच्छा भी नहीं होती है अभी से. अभी अच्छा. I don't feel like having a samosa because I know there's a bigger purpose for me. So इच्छा भी नहीं होती. But people say cheat day and all, मुझे मतलब वो अपने आप को cheat day में लाना भी I don't feel okay. So I create a good balance between roti, rice, dal, sabzi, and I like made food. Generally घर का खाना. घर का खाना. And अभी मैंने मतलब after meeting all you guys also I've changed my eating habits. So I have good salads. Whenever I feel hungry, I would have a pistachio or I have a good dry fruit mix. Right. And this when I'm working, like I'm not a 100% serious and I have a professional life also. So I work from 8:30 to whatever time in office also. So इसमें फैमिली का आपको सपोर्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है. And for me to succeed or wherever I am today, my mother, my wife, my daughter, very very critical in this role because they ensure that I get my space, my time. Okay, they ensure I'm fed well. मतलब खाना पीना and the most chosen one by God. I'm the most luckiest one. कि कभी ऐसा मतलब मुझे ऐसा तकलीफ नहीं रहता है. Whatever food and all, I get the best of it. मतलब if you look at my डब्बा, I'll have dry fruits, I'll have a fruit, I'll have salad, I'll have sabzi, I'll have roti. काफ़ी सारी चीज़ होती है मेरे इसमें. So credit to my mother, my wife, and my daughter, who's my inspiration. I said, you can never lose anything, but you have to go for it. सो सर अभी आप ऐसे सोशली you have already explained the social, personal, very professional. We know very well. Professional, of course, there is no, we don't have any question. The good professional. तो हमें आपका spiritual approach के बारे. So मेरा spiritual journey ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं, but I believe in God. I believe in the creation, and I thank God every night when I go to sleep. I thank Him every morning that He's going to show me a beautiful day. And I thank God for anything and everything which happens in my life. Okay, when I eat good meal, I generally get hot food. When I get this hot food, I feel मैं एक राजा के जैसा हूँ. एंड मुझे मतलब भगवान ने इतना ये दिया है कि मुझे ऐसा खाना मिल रहा नसीब हो रहा है. हॉट फूड मतलब जनरली व्हाट यू वुड हैव, दिस इज व्हाट यू वांट इन लाइफ, राइट, एट द एंड ऑफ द डे. सो व्हाटएवर आई डू, आई थैंक गॉड इमेंसली फॉर व्हाटएवर इज गिवन मी. मेरा पूजा पाठ रेगुलर रहता है. अनलेस आई डोंट
do puja. I don't eat food also in the morning. So puja होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. And I believe, I truly believe कि मतलब the hands that have raised you, you should never let those hands go off. Like मतलब I pray my mother gets good, healthy and wealthy life. So she's like blood to me. Okay. And I do whatever she says. Right. So I'm actually surrounded by all females only. I've got my mother, wife, and daughter. नारी शक्ति So, but you feel very comfortable. My mother is my inspiration, and my wife and my daughter supports it. And if you look at my family, everybody is on the spiritual way. So everybody has got a good balance of padna, puja part, and all. This is a part of our life. ओके, जैसे हमने बोला था फेमिनिन एनर्जी, नहीं आई थॉट आई इसको तेरे को बोला दैट इज विदाउट फेमिनिन एनर्जी, ये जो है फेमिनिन एनर्जी के सिवा ये चीजें नॉट अलाउड पॉसिबल. तो कुछ ऐसे हमारे किस्से थे जो मैंने इसको हमेशा बोलता था, सम फेमिनिन एनर्जी विथ यू, अदरवाइज नो. तो डेफिनेटली ये आई बिलीव अगेन हमें सेकंड और थर्ड मिला एग्जांपल कि फेमिनिन एनर्जी. वी आल्सो बिलीव इन फेमिनिन एनर्जी. वी हैव टू रिस्पेक्ट एनर्जी, एंड वो एनर्जी को रिस्पेक्ट से ही हम उसको ये कर सकते हैं. अदरवाइज देयर इज नो अदर स्केल फॉर फेमिनिन एनर्जी, व्हाट आई बिलीव इन दैट. और मैं जैसे गोवा में था, तो व्हाई गोवा पीपल लव्स, इट्स अ वाटर एलिमेंट, इट्स अ फेमिनिन है. Shivan, you asked me the question when you triggered off. So जैसे मैं कहा था, I wish to do that brisk walking. हमारे जो MD है, उन्होंने कहा आपको दौड़ना चाहिए. ये वॉकिंग से ज़्यादा कुछ होगा नहीं. बस दौड़ना चाहिए. दौड़ने से you will probably be much little better off. And because of that, वो इवनिंग को जाके मैंने दौड़ने के लिए गया. So a lot of credit goes to our MD also for triggering this, and that's what leadership does. They identify your potential and they give you that. जैसे आप हनुमान जी का ने स्टोरी सुने हैं कि हनुमान जी उड़ सकते थे, उनको पता नहीं था उड़ सकते थे, फिर बाद में जब उनको याद आया वो उड़ के चले. So you could have that within you, but unless and until somebody has your leadership, जैसे मेरे केस में हमारे एनडी साहब ने बताया कि I think you should do this, and then I took around that and I could do that. वो आपका एग्जांपल दे रहे हैं कि हम वी बोथ आर स्टार्टेड, और वो कहाँ They correct. So he used to say, I am running. He used to say, I am running, and it is helping me a lot. So he used to do about 3 to 5 kilometers, 6, 7 kilometers. और मैं तो zero पे था because I used to walk. And then I pursued it. मैं regularly करता रहा. उनके schedule के हिसाब से शायद नहीं कर पा रहे होंगे. But then मैं करता रहा, and then progressively move करता रहा आगे. But he's got different skill set. He is very flexible. He can do plan for his X number of time, which probably I can't do. So मैंने इस direction में I moved myself ahead. But the start point was he telling me, I think you should go ahead with running. You should. will give this clip to MD sir. Yes, yes. And he knows about it. You know the voice there. The next thing is that सर, वो जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला तो आई आस्क्ड सर कि 7 घंटे सोना चाहिए. सर बोले वो टोल्ड यू, तो 3.25 घंटा बस है. वो थ्योरी होता है. So जैसे I have been reading about Chanakya and also. So sleeping ये है कि sleeping at the right time is very important. मतलब आप सवेरे 4 बजे सोओगे और फिर दोपहर के 12 बजे तक सोते रहोगे, that's not going to give you good rest to your body. So sleeping at the right time is very, very important. Having your food before your meal, before your sleep is very, very important. At the right time. मतलब you can't have meal at 11 o'clock and sleep at 11:15. Because that is going to be counter reactive to your body. So एक खाना पहले खा लेना, उसके X टाइम के बाद आपको सोना है, and then about 6 hours of sleep is good enough. अगर आप 10:30 बजे सोते हो, so 6 hours of sleep is good enough. पर अगर आप delayed सोते हो, so it's not going to give you good rest. So मेरा ऐसा मानना है, and then what happens is you build your body towards that. आपकी body used to हो जाती है. So जैसे if you do something repeatedly, then the body understands this is the routine. So इसलिए कभी वो अगर आपने एक आदत डाल दिया कि आप 10:30 सो जाओगे और 4 बजे उठोगे, the body will understand this is enough for me. और फिर then daytime में I don't get any sleep. I don't sleep anytime. Even if it is Sunday or Saturday, I don't sleep anytime in daytime. So that much sleep is good enough for me. Get me in the Nowadays जो टीनेजर्स हैं सर,
इवन हमारे एज के भी लोग हैं, दे जनरली यूज टू ऑपरेट मोबाइल फोन्स, Yeah, screen time is high. पीपल आर लाइक दिस। तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है सर, हाउ टू कंट्रोल दैट स्क्रीन टाइम टू एटलीस्ट स्लीप एट टाइम। अगेन पर्पस सामने होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनट यू गेट इनटू स्क्रीन टाइम इट हैज गॉट इज ओन साइड इफेक्ट्स कि आपको स्किन को भी इन्फेक्ट करेगा। द यूवी रेज विल इम्पैक्ट योर स्किन ऑल्सो बियॉन्ड योर आइज। सो मेरा तो ये मानना है कि एक बुक एक आपका अच्छा साथी होता है एंड गिव्स यू अ गुड स्लीप। तो अगर आप एक बुक लेके इफ यू गो टू बेड लाइक यू स्टार्ट योर स्लीप विद अ बुक डेफिनेटली विल फॉल स्लीप फास्टर। सो एक वो हैबिट की बात है। यू शुड ट्राई टू रीड समथिंग फ्रॉम अ बुक, नींद अच्छी आ जाएगी। बट देन अगेन पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट Purposes. Yeah, pursuing purpose. बिकॉज क्या ऐसी आई एम नॉट सेइंग वॉचिंग स्क्रीन इज रॉन्ग, बट वो जो बैलेंस क्रिएट करना है आपको कि फ्रॉम गुड टू बैड, ये जो थिन लाइन है वो आपको समझनी है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो गिविंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली। सो इन्फॉर्मेशन होना अच्छी बात है, बट देन कितना इन्फॉर्मेशन ले, राइट? So some people can manage it very well. They had got very good protocols in life कि saying मुझे दिन में या lunch time में I will manage this, okay? और whenever I am traveling I'll do this. Screen time. उसके beyond में नहीं देंगे। So some people have mastered this, which will help them. पर अगर अच्छी नींद का रस चाहिए आपको, तो अगर जल्दी नींद चाहिए उतना मोटा बुक ले लो आपकी, ऑटोमेटिकली बहुत। हमारे सर बोलते थे इंग्लिश में बुक ले लो तो खर्चा नहीं दिया रहेगी। तो मैटर इज दैट कि पता तो है, एवरीबॉडी नोज इट, लेकिन थोड़ा वो एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, तो वही सर ने बोला पर्पस, वो का पर्पस। तो ये पर्पस से ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आएगा सर। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली हमारी सोसाइटी की मीटिंग में वह डिस्कस ही कि अभी मैं एग्जाम्पल कॉलेज टाइम में लेता हूँ, तो फाइनल ईयर तक देयर वाज नो विजन। नेक्स्ट 1 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है। ये तो जब मैं कॉलेज में था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। आज की डेट पे इनफैक्ट सो वेरी पीपल दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग, दे आर एट 40, 45, इवन 55 वालों को भी मैंने देखा है। दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग बट दे हैव नो विजन। अजय एटलीस्ट 1 साल, 6 महीने 1 साल का तो विजन होना चाहिए आपके पास। हाउ टू सेट दैट सर? क्योंकि प्रॉब्लम विजन नहीं होने में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि हमको पता ही नहीं है कि विजन सेट कैसे करना है, सेट क्या करना है। ये सब देखो संगत का असर है जनरली। मतलब इफ यू हैव द राइट संगत, मतलब आप उन लोगों को मिलो जो इस धारणा को मानते हैं कि अगर विजन होगा तो मतलब सी ये लाइफ है, राइट? अगर आपको जाना भी है, आज घर से ऑफिस जाना है, तो पता है आपको ऑफिस कहाँ है, वो एड्रेस पता है, सो यू रीच देम। और आप निकल पड़े हो एज अ वॉन्डरर तो कहीं नहीं पहुंचेंगे ना आपके। सो लाइफ में विजन सभी का होता है। आई डोंट थिंक सो पीपल डोंट हैव विजन इन लाइफ। पीपल सो विजन तो होना बहुत जरूरी, बिकॉज आपको कि देखो देयर इज नो एंड टू ऑल दिस थिंग, राइट? मतलब जो भी आप करो, आप पैसे कमा लो, फेम ले लो, देयर इज नो एंड टू दिस, राइट? दिस कैन गो इनफाइनाइट, बट देन यू शुड नो कि भाई मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, दिस इज व्हाट आई वांटेड इन लाइफ, एंड यहाँ से आगे मुझे कुछ और करना है। मतलब मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपको समाज का देना बनता है, सो यू शुड डू समथिंग फॉर समाज। सो अगर ये है, तो अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में नहीं कर पाए और ये, तो कभी ना कभी तो ये करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी एज ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इट इज़ गुड दैट यू डू इट इन योर डेली रूटीन्स, योर वीकेंड्स एंड ऑल। अगर नहीं कर पाए हो तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ही। सो विजन के लिए मेरे हिसाब से जनरली होता है, बट देन इफ यू हैव द राइट पीपल अराउंड यू, दे हेल्प यू सेट द विजन, दे हेल्प यू सेट योर पर्पसेस। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले अर्लियर जनरेशन वर नॉट टू क्लियर उनको क्या करना है नहीं, एंड एट टाइम्स दैट वाज गुड बिकॉज दे कुड एंजॉय दैट मोमेंट, दे कुड फील, दे कुड बी हैप्पी अबाउट दैट मोमेंट। अभी का नया जनरेशन जो है, दे थिंक मोर ऑन फ्यूचर कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, बाय एक्स टाइम मुझे क्या करना है, एक्स टाइम क्या पहुंचना है। सो इन अ वे दे आर किलिंग देयर करंट टाइम, करंट जो भी उनको करना है हो, बिकॉज दे आर टू मच इनटू फ्यूचर। एग्जैक्टली वहीं से ये आता है सर हमारा वन प्रोफाइल मेंबरशिप। दे आर वेरी मच इंगेज इन हैंडलिंग वन प्रोफाइल। उसके अलावा तो उनके 3 प्रोफाइल मिसिंग है। हाँ। या उनको ये पता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उसका रीजनिंग नहीं है कि क्यों चाहिए और उसके बाद क्या, या उसके बाद का पता है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एंड होगा, क्यों चाहिए दे डोंट नो, क्या चाहिए मे भी पता है। तो फॉर दैट मे बी ये बट हमने जब इसकी R&D की, हमने जब काफ़ी किताबें पढ़ी, देखी, समझी,
और जब एनालिसिस किया तो एक ये भी पार्ट आता है सर कि हम पास्ट और फ्यूचर में ही ज़्यादा रहेंगे तो प्रेजेंट जीना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो Very- बी इन प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हीलिंग योर माइंड, क्योंकि हम प्रेजेंट में हम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आई एम हियर, तो आई हैव टू बी हियर ओनली। आई एम वेरी honestly I have to be here. If I'm talking to you and I'm in future, or I'm in past, or with the fear, with the anything planning, anything is there. तो नहीं, that is not. That is why the word present is called present. It's a gift. Present बोलते हैं. So mostly ये होता है कि our thoughts are so random कि they take you to future, they bring it past, but ये future past दोनों आपको disturb करेगी. And would let you enjoy. जो present है उसको enjoy करो. You can't avoid anything which is waiting to tomorrow. You have to go for it. ओ सर प्रेजेंट मतलब गिफ्ट Gift present यहाँ पर miss gift. That we have paper mantra. Present is a gift, and the believe, practice, practice, practice. एक सिंपल सा चीज़ है, मैं मानता हूँ. If you are committed, there is always a way to make it happen. वो commitment लाना बहुत ज़रूरी है. आपका ये जो वर्ड है ना, make it happen, is boom like anything. जी सर, make it happen, make it happen, और बहुत सारे हैं. और जैसे मेरा है मेक अ डिफरेंस, मेक इट, मतलब डिफरेंस आपको एज अ ह्यूमन क्रिएट करना है आपकी लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी सराउंडिंग लाइफ में. हाउ डू यू क्रिएट अ डिफरेंस इन देयर लाइफ? इफ आई एम सेंडिंग इट दैट मैसेज, बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर करते होंगे मैसेज, पर अगर मैंने 2 लोगों को भी अगर उसमें से इंस्पायर किया, हाँ, आई हैव अचीव माय ड्रीम. और ये मैसेज मतलब आई एक्चुअली वर्क ऑन दिस, मुझे ढूँढने के लिए, वो ढूँढ के लाना और उस टाइम पे डालना. Situation based If message. you look at if you look at your first of the month, the message is different. Different. If you look at the last day of the month, the message is different. If you look on a Sunday, the message is different. Yes, yes. तो इवन पिक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट. और आई नो दैट कि सर ने मुझे एक एग्जाम्पल शेयर किया था, मैं वो 7 दिन के बना के फिर उसको रियल. So I create a backup. I don't work randomly कि आज मुझे डालना है. So I know what I'm going to post on a Monday, on a Saturday, on a Sunday. That's Munchin message. Never give up. वो एक अनबिलीवेबल बात है. और वन मोर थिंग, विशेष, विशेष इन आवर रीजन, सर का विशेष मैं इतने सालों से देख रहा हूँ ना, सर का विशेष. और मेरा बेस्ट मैं बताता हूँ कि मैं एफएलडीपी के लिए जा रहा था और आई वाज इन एयरपोर्ट और सर का एक मैसेज आया. मैंने अभी भी वो लैपटॉप में मेरे सेव करके रखा है. कभी भी मैं लैपटॉप पर्सनल फोल्डर में जाता हूँ ना, वो मैसेज अभी भी रखा है, वाइट बैकग्राउंड में रेड इसमें लिखा था. तो एक वहां से फिर मैंने आपके मैसेजिंग स्टार्ट. I'm happy कि I'm able to create some difference here. It's always there. Father, that's why we are sitting with you. We want to take more from you. मंत्रा, एक मंत्रा दो इस. अभी हमने एमडी सर से भी एक ले लिया सर. वी हैव गॉट सम, तो हम रील करेंगे बाद में. आई लेट फ्रॉम यू, और जो कि इट कैन मोटिवेट टू एनीवन. इट इज फॉर एनीवन, लाइक टीनेजर, या आप अगर अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग करना चाहते दैट इज ऑल्सो ओके. मेरे पास ऐसा कोई मंत्रा तो है नहीं मतलब इसके लिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे इफ आई हैव टू लुक एट व्हाट हैज गॉन राइट इन माय लाइफ इज हार्ड वर्क इज वेरी वेरी क्रिटिकल. मतलब पीपल मे से टुडे, आज की दुनिया में बहुत सारे नए लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क होना चाहिए. वो सब है, स्मार्ट वर्क होना ही चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और अगर आपका हार्ड वर्क का ये मिसिंग है, अप्रोच मिसिंग है, सो यू आर मिसिंग एवरीथिंग. हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और फिर जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस, कुछ कुछ एरिया में कहा मैंने, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है. सो टू गो ओवर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड मेक इट योर लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. कमिटेड रहना इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. कमिटमेंट मतलब सामने है, कमिटमेंट की तरफ काम करना. So whatever is needed to be done for that, in terms of hardship, in terms of extra time, वो होना बहुत ज़रूरत है. एंड मतलब मैं कभी ऐसे आई डोंट बिलीव, मतलब अगर जैसे वो बेबी पिक्चर देखा होगा आपने अक्षय कुमार का, जिसमें बोलते कितना प्रोबेबिलिटी है, इज इट ओनली 0.1%, आई गो फॉर इट. ओके. मतलब मैं कभी ऐसा इजीली हार नहीं मानूंगा किसी चीज़. आई विल गो फॉर इट. मतलब इफ आई बिलीव ये होना ज़रूरी है, सो अब मैं वो मतलब आई वॉन्ट, अगर छोटा भी
प्रोबेबिलिटी है उसका, आई विल टेक इट, आई विल गो फॉर इट। टेक अ चांस, Definitely. नेवर गिव हाँ, नेवर गिव अप, मतलब आई नेवर गिव अप, आई नेवर गिव अप ऑन पीपल आल्सो। मतलब आई पर्सनली बिलीव कि ऐसा कोई भी ऐसा ये नहीं है कि इससे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। Everybody's got a side. One needs to understand the emotional portion of that person and work accordingly. Get him success. So I never give away with anyone. I can work on anything. yes. So now it's time for Now the time through, yes sir, I think I like anything. He after long time मेरा नंबर कल आया है, को फास्ट बोल के तो बुला लिया तुमको ने और बिठा दिया यहाँ, हाँ? So, sir, before starting, means how's the Josh, sir? Josh is always high. Always high. Always high. That's good. Tea, coffee, or मिष्टी थी, Mishti bhai. right? पसंदीदा जंक फूड, Samosa chant. ओके। ड्रीम वेकेशन जहाँ आप छुट्टी बिताना चाहते हो? मैं नहीं, पर मुझे ऐसा छुट्टी पसंद नहीं है वैसे बेसिकली, बट एनी गुड लोकेशन जहाँ पर आई गो सेट रिलैक्स हो सकता है, बट मुझे रिलैक्स ये नहीं पसंद नहीं है। ओके। आखिरी गाना आपने क्या सुना सर? गाना यस। गाने तो मैं बॉलीवुड बहुत सुनता हूँ, अभी लेटेस्ट गाने काफ़ी सारे, आई लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स। अगर आपको दुनिया में कहीं भी रहना है, कहाँ रहना पसंद करेंगे? मुझे मुंबई बहुत पसंद है। ओके। टाइम ट्रेवल का मौका मिले किधर, पास्ट जाना चाहोगे फ्यूचर? कहीं नहीं, आई लव प्रेजेंट, जैसे मैंने अभी कहा। हाँ, मेरे Like बहुत present. सारे आंसर मिल गए थे उस पर। सो सर, अगर एक दिन के लिए अदृश्य होने का मौका मिले, आप क्या करना चाहोगे? सोचा तो नहीं है, बट ऐसा ऐसा दिल नहीं आना चाहिए कि मैं अदृश्य हो जाऊँ, मतलब दैट वुड बी लाइक आई वोंट बी दिस वर्ल्ड, राइट? सो ऐसा मैं चाहता नहीं जल्दी आ जाए ऐसा दिन। राइट। सो सर, बिगेस्ट फियर? फियर ऑफ लूजिंग पीपल। एंड फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? Favorite holiday destination, see, by virtue of my professional life, I have visited almost 50 countries. Oh. So ऐसा मैंने कभी ऐसा favorite नहीं, wherever I go I enjoy on myself. Great. And your morning routine in 3 words? Morning routine in 3 words. So 3 words is I thank God. Thank God is I don't know only words. I thank God, and I start my day with very positive thoughts and energy. I thank God that He's given me this day now, and I'm going to crack this day. Great, sir. And do you believe in alien? I would believe in daily. Who is your role model? My role model is like, if you say my father was my role model, he did all hardship. He did everything good for society. Didn't get that many recognition and returns, but he was selflessly working on that. My father, mother have worked really hard to bring me up to what I am today. Favorite ice cream? I love ice cream. So kulfi, I love kulfi. Any kulfi is my favorite too. And one चीज जिसमें आप बैड हो, एक चीज जिस पे आप बुरे हो, तब अच्छा नहीं, मतलब खाने की बोल रहे हो? कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको, मतलब आप उसमें अच्छे नहीं हो। अच्छा नहीं, मैं जनरली मानता हूँ मैं काफ़ी इम्पेशेंट हूँ, कि अगर मतलब अगर वीकनेस हो, मैं जनरली इम्पेशेंट हूँ। आई कांट रियली वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, मतलब अगर नहीं हो रहा तो मैं खुद ही पूछ जाऊँगा दिन से हो जाने का। एक चीज जिसके बगैर आप घर से नहीं निकलते। विदाउट टचिंग माई मदर्स फीट। ओह ग्रेट। एंड फेवरेट मौसम? फेवरेट वेदर? मौसम। वेदर आई लाइक, आई लाइक जैन फ्रॉम मार्च वैसे, बिकॉज इट्स क्वाइट गुड, बट मुझे ठंड पसंद नहीं इतनी। ओके। मैं इवन आई हैव स्टेड इन टेम्परेचर 55 56 इन मिडल ईस्ट, वो ठीक लगेगा मुझे, बट मुझे ठंड ज़्यादा पसंद है। लास्ट मूवी यू वॉच्ड? लास्ट मूवी आई वॉच्ड इन थिएटर, यू मीन? एनीवेयर। आई लव बॉलीवुड मूवीज, मतलब मुझे जनरली पिक्चर सब पसंद ही आती है, ओके। बट आई वॉच्ड अ मराठी मूवी कपल ऑफ डेज बैक। नॉट एनसी सर। एंड बचपन की सबसे अच्छी यादें? बचपन की सबसे, मैंने क्रिकेट बहुत खेला है, मतलब मैंने कभी कभी ऐसे लगता है, प्लेयर? हाँ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैंने कुछ मेरा स्टडी करियर खराब किया क्रिकेट की वजह से, ओह माय बिकॉज इवन बिफोर माई एग्जाम्स आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फुल डे एंड देन कम एंड स्टडी, गॉड। बट आई यूज्ड टू बी वेरी रेगुलर इन स्टडी, सो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, बट क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। ठीक है सर। एंड हाईएस्ट यूज्ड इमोजी? Emojis, I always like to use this emoji, or maybe a shake hand emoji. और सबसे ज़्यादा हंसी कब आती है आपको? I like watching Laura Hardy, Charlie Chaplin, ओह ग्रेट। even a silent movie.
बिस्मिल्लाह। और काफ़ी सारे हिंदी मूवीज़ भी, जैसे हम परसों डिस्कस धमाल, ये सब मूवीज़ आर लाइक एथिक, आप हँसते रहेगा वैसे। अगर एक दिन के लिए किसी के साथ आपको अपनी लाइफ स्वाइप करनी है, चेंज करनी है, तो किसके साथ करेंगे? नो, माय लाइफ इज़ वेरी गुड, गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी, मुझे किसी और को स्टार्ट नहीं करना है। और ऐसी जगह आप गए नहीं हो और वहाँ जाना चाहते हैं? अ, ऐसे कोई इच्छा तो है नहीं, बट एनी बियॉन्ड दिस 50, मैंने इंडिया इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। आई एम नॉट एक्सप्लोर इंडिया सो मच। अभी मेरा ये है, अभी जो हमारा मी एंड माय वाइफ थिंक वी शुड एक्सप्लोर इंडिया ही मोर, एंड जो इंडिया में जगह हमने देखी नहीं है वो देखनी चाहिए। ग्रेट सर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मील यू कुक्ड? मैंने आई एम नॉट गुड एट कुकिंग एट ऑल। मैंने कभी बचपन में चाय बनाया होगा या कुछ किया होगा, बट दैट्स व्हाई आई सेड आई एम सो ब्लेस्ड, माय मदर एंड माय वाइफ एंड माय डॉटर ऑल आर लाइक अन्नपूर्णा। दे इंश्योर आई एम फेड वेल, और मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। तो आई एम अ ब्लेस्ड। Means good food, good mood. You also Always. feel that. Yeah, great sir. Great sir. And thanks sir for this rapid round. प्लेजर।